Hello students, today I am going to now start a very interesting topic, that is prism. Okay, so have you ever seen prism? Yes, tell. Yes, so prism is just like a rectangle type shape in which there are three faces. There are three faces and all the faces just looks like a prism, and prism is also a refracting device. That means in a prism light can refract from one medium to another medium. Whenever you just burn light, or whenever you are placing the prism in front of light, just you will get the refraction of light there also. So this is known as prism. So there is an angle of vertex of the prism, this is known as angle of prism, और ये angle of prism फिक्स रहता है, that is 60 डिग्री का फिक्स रहता है. ठीक है, तो बट कभी कभी ये डिफर करता है, अलग अलग टाइप्स का जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं प्रिज्म वो डिफर करता है, लेकिन ये दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. सो जस्ट राइट डाउन टॉपिक prism. So a transparent object, write down. So a transparent object having two triangular bases and three rectangular surfaces is called a prism, and all these surfaces incline to each other, forming the angle between two lateral faces is known as angle of prism. So this is angle of prism. Okay, so just I am drawing a prism. Whenever a light is passing through a prism, then what happens? Just I am drawing. This board is two-dimensional, that's why it is looking like a triangle, but prism is not a triangle. Clear? This is the angle of prism A. This is the angle of prism A. Angle of prism. Clear? So prism is a transparent medium in which whenever a white light is falling on it, it gets refracted. And it bends towards normal. Just normal, just I am drawing. It bends towards normal and after coming from prism it goes away from the normal. So this is incident ray, this is incident ray, or this is known as monochromatic white light. This is known as normal. Again, this is known as normal. So just
रिमेंबर जब हम लोग बात किए थे ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन में, चैप्टर लाइट चैप्टर में, तो क्या होता था जस्ट रिकॉल करो, याद करो कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता था तो क्या करता था, रेयरर टू डेंसर जाता था तो बेंड्स करता था टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर जाता था तो it goes away from the normal. That means when light enters from air to medium, it bends towards normal. It bends towards normal की तरफ bend कर गया, सीधे नहीं गया, normal की तरफ bend कर गया. और when light goes from denser to rarer, it goes away फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ न जा करके गोज अवे, दूर निकल गया. तो ये हम लोग रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़े थे. सिमिलरली यहाँ पे केस हो रहा है, यहाँ पे सिमिलरली केस हो रहा है प्रिज्म में. सो दिस इज why we are drawing this, just I'll show. So this is normal. So this is the angle between normal and incident ray is known as angle of incidence. This is I. The angle between normal and the angle between normal and refracted ray is R. So the angle between normal and refracted ray outside the prism is known as E, angle of emergent. Emergent, that means बाहर निकलना, angle of emergent. क्लियर. सो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है. और जब ये रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम लोग इमेजिनरी आगे बढ़ाते हैं और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता हुआ दिखता है, और दिस इज नोन एज डी, एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि रे कितना प्रिज्म में डेविएट हो रहा है, ये शो कर रहा है एंगल ऑफ डेविएशन. यहां से एक कंसेप्ट निकल करके आया है जो क्लास 10th में हम लोग को प्रूफ नहीं करना है बट जान लेना है. एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी. ये हम लोग को जानना है. ये ऐसा ऑप्शनल क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, कहीं पे ये मिसिंग, ये इधर, ये इधर, तो ऐसा आएगा ऑप्शन में. अगर एंगल आई प्लस एंगल ई है इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी है, दिस इज करेक्ट. इसमें से एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ रहेगा, इंसिडेंट दिया हुआ रहेगा, डेविएशन दिया हुआ रहेगा, इमर्जेंट निकालना है. क्लियर है. तो ये है प्रिज्म. आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, E is the angle of emergent, A is the angle of prism, D is the angle of deviation. We have written each and every point. Note it. Note किए. तो what is angle of deviation अभी हम लोग देखेंगे. What is angle of deviation? नोट कर लिए. एंगल ऑफ डेविएशन. ओके. एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग देखेंगे. एंगल ऑफ डेविएशन. व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? ओके. Angle of deviation is nothing but the angle deviated by incident ray and emergent ray. Angle deviated by incident ray and emergent ray is called angle of deviation. कभी कभी एग्जाम में आता है कि what do you mean by angle of deviation? So angle of deviation, just you can write here angle of deviation
एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं डी से। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? सो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, हम लोग देख रहे हैं इंसिडेंट रे, यह इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे is called angle of deviation, डी। क्लियर? जो यहाँ पे दिखाया गया डी। तो इन सारी बातों को नोट करें कॉपी पे। हमारा अगला टॉपिक होने जा रहा है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें। ओके, सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ये ग्लास प्रिज्म से डिस्पर्सन का होना, डिस्पर्सन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले विल ड्रॉ अ प्रिज्म, here this is a prism, so this is a prism whose angle is A is the angle of prism. So when a white light is falling on it, then क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा इनसाइड प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन होगा तो क्या करेगा? इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो सपोज इसका कोई नॉर्मल है, ये नॉर्मल के तरफ ये बेंड करना चाह रहा है, लेकिन ये व्हाइट प्रिज्म से बाहर जब निकला तो कुछ ऐसा निकला, कुछ ऐसा निकला, कुछ ऐसा निकला, कुछ ऐसा निकला, कुछ ऐसा निकला। समझ में आ रहा है? 7 कंपोनेंट्स में ये स्प्लिट होकर के निकलेगा। सो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 and last one is 7। क्लियर? तो ये जो व्हाइट लाइट है, दिस इज नोन एज व्हाइट लाइट। जब प्रिज्म में इंटर किया तो ये 7 कंपोनेंट्स में ब्रेक हुआ, और जो 7 कंपोनेंट्स में जो सबसे ऊपर का जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड D1। ऊपर का जो पार्ट है D1, और जो सबसे नीचे का जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड D2। अब ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट का क्या मतलब है? ये जो है, जो 7 जो निकला है रेज, वो 7 कलर्स में निकला है। दिस इज नोन एज 7 कलर्स। दिस इज VIBGYOR, Vigor। This is known as
Vibgyor, 7 components Vibgyor. अब ये D1 क्या है? तो D1 है एंगल D1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ऊपर का ये एंगल है ना, रेड कलर एंड एंगल D2 क्या है? तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर। क्लियर? सो हम लोग यहां से एक चीज देख रहे हैं, देयरफॉर एंगल D2 इज ग्रेटर देन एंगल D1, यानी कि जो डेविएशन का जो कलर का जो डेविएशन है वो D2 का ज्यादा है, वायलेट का ज्यादा है रेड के कंपेयर में। दैट मीन्स वायलेट इज मच deviate than red and red is less deviate than violet. So this is just I am writing this Vibgyor, V for Vibgyor, just I am writing V, violet, I, indigo, B, blue, this is blue, G, green, Y, yellow, O, orange, R, red. क्लियर? सो इस चीज को नोट करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे इस चीज को। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। सो दिस इज नोन एज splitting of white light, V, I, B, G, Y, O. This is known as splitting of white light into its 7 constituent colors is known as dispersion. और इसको लिख सकते हैं splitting of white light splitting of white light into band या strip। ये बैंड या स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप एक पट्टी है कलर्स का, स्ट्रिप ऑफ कलर्स is known as a spectrum. So this is the band of 7 colors. This is the band of 7 colors formed by splitting white light after falling into a prism is known as a spectrum. Clear? Note करें इस चीज को। And this is Vibgyor, and this is known as Vibgyor. 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 This is Vibgyor. VIB from bottom to top. Vibgyor. सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रहा है? वायलेट। सबसे कम डेविएट कौन हो रहा है? रेड। क्लियर? That's why the red color is used in traffic, ताकि
क्लाउडी डे में भी वो जो रेड कलर ट्रैफिक में यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसलिए यूज किया जाता है कि हम ट्रैफिक में जब रहे या दूर रहे तो क्लाउडी डे में भी रेड कलर दिखाई दे, स्टॉप। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये डेविएट कम करता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हिच कलर इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल, रेड एंड ग्रीन। ये अक्सर ग्रीन भी कम डेविएट करता है कंपेरेटिवली, ग्रीन भी कम करता है। ठीक है, येलो भी यूज किया जाता है बट उसका कम बहुत रहता है, तो रेड का यूज किया जाता है। फाइव रेड कलर इज यूज बिकॉज इट्स डेविएशन इज वेरी लेस। नोट करें इस चीज को, नोट करें, फिगर बनाएंगे, नोट करेंगे, कुछ और पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। ओके ओके ओके, अब हम लोग देखेंगे डिस्पर्सन। अभी जो बात हम लोग का टॉपिक है वो डिस्पर्सन का है कि अभी डिस्पर्सन क्या है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज डिस्पर्सन। सो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, द splitting of white light, the splitting of white light into its component colors, into its 7 components colors is called dispersion, is called dispersion। तो ये डिस्पर्सन क्या है? व्हाइट लाइट का थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट होना 7 कलर्स में भिग्योर, इसी को हम लोग बोलते क्या है? डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। सो द डिफरेंट कंपोनेंट, नेक्स्ट नोट करें इस चीज को, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे हम, नोट किए, इस चीज को नोट करें, इरेज करेंगे। ओके, some more points that we have to write here. We continue. Okay, so the different component color, the different component colors, the different component colors of light bends at different angle, at different angle with respect to an incident ray of angle, the red light bends the least where the red light bends the least, that means minimum, least, while the violet
bends the most that means maximum। हम लोग देख रहे हैं जब व्हाइट लाइट जो है इसका डिफरेंट कलर्स हम लोग को मिला, कब? तब जब ये व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास हुआ। अब जब प्रिज्म से पास हुआ तो व्हाइट लाइट डिफरेंट 7 कलर्स में, दैट इज नोन एज वीव ग्योर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब इसमें देख रहे हैं कि रेड कलर जो है इसके रेस्पेक्ट में कम डेविएट हुआ है, लीस्ट डेविएट हुआ है रेड, दैट इज D1। लेकिन जो वायलेट कलर है, ये वायलेट नीचे वाला, दैट इज मोस्ट डेविएट, इसका डेविएशन ज्यादा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि वायलेट, द एंगल ऑफ वायलेट कलर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रेड कलर। क्लियर? जो हम लोग लास्ट टॉपिक में लिखे थे इससे पहले। क्लियर है? अब क्या है कि इस पे बेस्ड एक थ्योरी आया आइजैक न्यूटन का। तो न्यूटन सर जी ने एक खोज किया कि जो सन का लाइट है, व्हाइट लाइट है, क्या रियल में इसमें 7 कलर्स है? व्हाइट लाइट जो है क्या रियल में 7 कलर्स है? अगर रियल में इसमें 7 कलर्स है तो फिर से अगर हम इन 7 कलर्स को कंबाइन कर दें, कंस्टिट्यूट कर दें, तो ये व्हाइट लाइट बन जाना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके दिखाया, वो हम लोग इसके बाद नोट करेंगे। तो इस चीज को नोट करें, उसके बाद हम लोग देखेंगे आइजैक न्यूटन एक्सपेरिमेंट ऑन व्हाइट लाइट थ्रू अ पेयर ऑफ प्रिज्म। ओके, सो आइजैक न्यूटन सर जी ने एक्सपेरिमेंट किया कि व्हाइट लाइट जो है सन का रियल में व्हाइट लाइट है, अगर है तो उसको दिखना चाहिए कि हाँ व्हाइट लाइट है। तो उस चीज को यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली उन्होंने दिखाया है आइजैक न्यूटन ने। तो मेरा टॉपिक है आइजैक न्यूटन ऑन आइजैक न्यूटन एक्सपेरिमेंट। आइजैक न्यूटन एक्सपेरिमेंट। तो आइजैक न्यूटन एक्सपेरिमेंट क्या लिखे हैं, हम उस चीज को लिखने जा रहे हैं, नोट करेंगे। सो सर आइजैक न्यूटन experiment is this. He was the first who obtained a spectrum of sunlight by using a glass prism. He tried to split the spectrum of white light more by using another similar prism, but he could not get any more colors. That means कि जो न्यूटन सर जी थे वो क्या किए, ये देखिए कि एक प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट इंटर कर रहा है, पास कर रहा है, तो 7 कलर्स में स्प्लिट कर रहा है। क्या इस प्रिज्म के जगह पे दूसरा प्रिज्म रख करके देखें क्या 7 कलर्स होता है, पास होता है या उससे ज्यादा होता है? वो दूसरा सिमिलर उसी टाइप का प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म रखते हैं, दूसरा प्रिज्म, लेकिन वो भी 7 कलर्स ही स्प्लिट होता है। उस तरह से बहुत सारे प्रिज्म को रखे देखें तो 7 कलर्स के सिवाय कोई और कलर, 8वां कलर नहीं दिखाई दिया। मतलब उनको समझ में आ गया कि जो व्हाइट लाइट है इसमें कहीं ना कहीं 7 कलर्स छिपा हुआ है। अब क्या किए कि ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को अब फिर से रिपीट किए। तो जो दूसरा सिमिलर जो प्रिज्म लाए थे, इस बार वो क्या किए कि जो पहले से जो प्रिज्म रखा हुआ था, इस तरह से जो प्रिज्म रखा हुआ था, दूसरा बार तो ये जब प्रिज्म रखा हुआ था तो इसमें लाइट इंटर किया, तो इसमें लाइट इंटर किया तो क्या किया, 7 कलर्स में स्प्लिट हुआ ना। 7 कलर्स में जब स्प्लिट ये हुआ तो जैसे ही ये स्प्लिट 7 कलर्स में हुआ, ये दूसरा प्रिज्म को ये उलट के रख दिए। दूसरा प्रिज्म को क्या किए, ये उलट के रख दिए। अब जैसे ही ये उलट करके रखें तो पुनः ये प्रिज्म से क्या देखें कि फिर से एक व्हाइट लाइट स्क्रीन पे आ गया। मतलब कि ये 7 कलर्स कहीं ना कहीं जो सनलाइट है, व्हाइट सनलाइट
ये जो व्हाइट सनलाइट है कहीं ना कहीं इसमें 7 कलर्स छिपा हुआ है एंड दैट इज नोन एज विबग्योर। तो वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये दिखाए। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज है। ये हम लोग स्कूल में लैब में इस चीज को करेंगे, प्रैक्टिकल जरूर करेंगे इसको, ठीक है। ये दिखाएंगे इसको व्हाइट लाइट से कैसे स्प्लिट 7 कलर्स में हुआ, फिर वो 7 कलर से फिर से वापस व्हाइट लाइट कैसे है, हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ओके, तो ये न्यूटन सर जी ने क्या किया कि व्हाइट लाइट को जब 7 कलर्स में स्प्लिट किया तो इसके जगह पे कोई और प्रिज्म को उठा करके रखा तो भी 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा था। अब फिर से देखा कि अच्छा इस बार क्या करेंगे कि जहां पे स्प्लिट हो रहा है 7 कलर्स उसमें क्या किए कि एक दूसरा वाला प्रिज्म को ला करके और उसी प्रिज्म के जैसा उसी को उलट के रख दिए, उसका इन्वर्टेड इसका अपोजिट रख दिए, और जैसे ही अपोजिट रखे तो फिर से उनको क्या मिला, व्हाइट लाइट मिला। तो इससे वो इनका क्या कंक्लूजन निकला, सो ही कंक्लूडेड दैट sun is made up of 7 visible colors known as विबग्योर। मतलब वो उनका कंक्लूजन क्या रहा कि जो सन का जो कलर है, व्हाइट लाइट जो निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, विजिबल 7 कलर्स का निकल रहा है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये चीज कभी कभी दिखाई देता है, रेनबो में दिखाई देता है, ठीक है। तो रेनबो का कंडीशन क्यों होता है वो हम अभी तुरंत इसके बाद करेंगे। तो इस चीज को नोट करें इस चीज को, क्योंकि अगला मेरा टॉपिक होगा रेनबो का, कैसे रेनबो बनता है, तो रेनबो बनने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। इसको नोट कर लिए। ओके, सो आवर टॉपिक इज वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक प्रिज्म। अगर हम लोग जैसे देखते हैं रेनबो, जब हम लोग आकाश में रेनबो देखते हैं तो ये रेनबो एक्चुअली में कब दिखाई देता है, तो रेनबो जब रेन होने के बाद जब सन का निकलना होता है, जब सूर्य निकलता है, रेन बंद होने के बाद, वर्षा खत्म होने के बाद जब निकलता है सूर्य, तो सूर्य के अपोजिट साइड में, अगर सूर्य इधर निकला तो इसका अपोजिट साइड में रेनबो बना, अगर सूर्य इस साइड निकला तो रेनबो इधर बना। अब ये रेनबो कब बना, तो सूर्य को निकलने के बाद, कब, तब बारिश खत्म हुई। बारिश खत्म होने के बाद जब सनराइज हुआ उस वक्त उसका सन का अपोजिट में रेनबो बना, पहली बात। दूसरी बात, ये जो रेनबो बना, तो रेनबो मतलब क्या होता है, 7 स्ट्रिप ऑफ 7 कलर्स, ऐसे बनता है ना रेनबो, इस तरह से बनता है। दिस इज रेनबो। क्लियर। अब ये रेनबो जब बना तो रेनबो में 7 कलर्स आया, विबग्योर आया। अब ये विबग्योर जब आया तो हम लोग जानते हैं कि ये व्हाइट लाइट, क्योंकि सन कंसिस्ट व्हाइट लाइट, सन में व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट कब 7 कलर्स में बनता है, सब 7 कलर्स में कब स्प्लिट होता है, तो जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म में पास करता है, जब एक प्रिज्म से होकर के पास करता है तब जाकर के वो रेनबो बनता है, 7 कलर्स बनता है, हम लोग ये जानते हैं। अब सीधी सी बात है कि प्रिज्म तो ऊपर रखा हुआ है नहीं, आकाश में रखा हुआ है क्या, अच्छा किसी ने रख दिया होगा, ठीक है, वहां पे प्रिज्म नहीं है। लेकिन एक चीज पता होना चाहिए कि जैसे ही वर्षा खत्म होती है तो जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट इज ह्यूमिडिटी रह जाती है, तो ह्यूमिडिटी में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, और वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो है
वही जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, इसमें जैसे ही व्हाइट लाइट इंटर करता है, इसमें जैसे ही व्हाइट लाइट इंटर करता है, इसमें जैसे ही व्हाइट लाइट इंटर करता है, तो ये इंटर करने के बाद रिफ्लेक्शन होता है। ये जो रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये 7 कलर्स में बट जाता है। क्लियर है? तो जैसे ये व्हाइट लाइट और रे ऑफ व्हाइट लाइट और रे ऑफ व्हाइट लाइट, ये वाटर ड्रॉपलेट्स में जैसे ही इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद हम लोग देख रहे हैं 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। क्लियर? ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, और इसी का नाम है रेनबो। नोट करें इस फिगर को, इस डायग्राम को, दिस इज रेनबो। क्लियर है? अब इसको हम लोग लिखेंगे कि इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो ए पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, बी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट क्या कर दिया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये रिफ्लेक्शन इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट्स हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, वहां पे क्या हो रहा है, तो सी पॉइंट्स पे अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ए पॉइंट्स पे अगर बोले तो क्या हो रहा है, ए पॉइंट्स पे एट ए रिफ्रैक्शन एट बी पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब आर पार नहीं हो रहा है, वो टकरा करके वापस आ रहा है, रिफ्लेक्शन। और सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो सी पॉइंट पे फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये क्या वाटर ड्रॉपलेट्स में ऐसा हो रहा है, दैट्स वाई हम लोग रेनबो देखते हैं। क्लियर है? अब इस चीज को कुछ हम थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, दिस इज वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट इज रेन ड्रॉप है। क्लियर? नोट कर लिए कुछ थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी में बताएंगे कि रेनबो में बॉटम में कौन सा कलर होता है, तो रेनबो में बॉटम में वायलेट होता है, वाइल टॉप पे रेड होता है, एंड ऑलवेज, कहां पे लिखूं, यहां पे, ऑलवेज रेनबो forms after rain and rising of the sun. पहली बात, always rainbow forms after rain and rising of the sun. सेकेंड बात क्या है कि रेनबो forms in opposite direction of sun के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो का बनना होता है, ऑलवेज। क्लियर है? अब इस फेनोमेना को जस्ट यू कैन राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, when a ray of white light is falling in a water droplet present in the atmosphere after rain stopping, then it gets refracted, and after getting refraction it gets reflected, and after getting reflection it gets refracted again and split into 7 colors, which is known as रेनबो। देर इज ऑल्सो डिस्पर्सन, बिकॉज यहां से डिस्पर्सन,
So the phenomena is also known as dispersion. This is dispersion. पता है ना डिस्पर्सन, क्योंकि ये व्हाइट लाइट इंटर किया है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में बना है ना, सो दैट्स वाई डिस्पर्सन. पता है ना कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन. सो इस चीज को नोट करें. सो दिस इज ऑल अबाउट द chapter the human eye and the refraction. In the next video we will discuss about twinkling of stars. स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, डिले सनसेट एंड लेट सनराइज, डिले सनसेट, ये क्यों ऐसा होता है, इसका क्या रीजन है. जो हम लोग आकाश में जो तारे देखते हैं, स्काई जो है वो ब्लू क्यों होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट क्या होता है, व्हाई इज कलर ऑफ स्काई ब्लू, ये देखेंगे. कलर ऑफ द सन एट द सनसेट एंड सनराइज, कलर उसका क्यों ऐसा होता है, ये सारी घटना हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो पढ़ाई करते रहें, नोट बनाते रहें और खुद से प्रैक्टिस करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.